આ છે સત્ય સનાતનનું આ વિડિયો સિરીઝના બીજા એપિસોડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગયા એપિસોડમાં આપણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના શાસ્ત્રો અને પ્રસંગો કઈ રીતે સનાતન પરંપરાના જ ભાગ છે તે વાતને ખૂબ સારી રીતે સનાતન શાસ્ત્રોના પ્રમાણો સાથે સમજ્યા હતા। જો વિડિયો જોવાનો બાકી હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે। તો મિત્રો, આજે ભારતના સંતો, મહંતો, કથાકારો અને બહુ પ્રચલિત વિડિયો સિરિયલ્સના પ્રમાણો જોઈને આપણને વધુ સ્પષ્ટ થશે કે એક સનાતની તરીકે આપણી માનસિકતા સંકુચિત કે વિવાદજનક નહીં પણ ઉદારતાથી ભરેલી હોવી જોઈએ। હવે આગળ હું વાત કરું તે પહેલા આ વિડિયો ધ્યાનથી જુઓ। जब आप शिव पुराण से बोलेंगे तो शिव के अंश से हरि हैं, और जब भागवत पुराण से बोलेंगे तो हरि के अंश से शिव है। आप इस बात को समझिए। कभी कोई भगवत चरित्रों पर संशय ना करे। कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर जब खेल खेलने में उतरते हैं तो वही तत्व छोटा बनता है, वही बड़ा बनता है, वही स्वामी बनता है, वही सेवक बनता है। विविध प्रकार से वो जगन नाटक वैभवा। शिव पुराण लईने चालो એટલે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પણ શંકરને હાથ જોડીને ઊભા રહે, અને વિષ્ણુ પુરાણ લઈને ચાલો એટલે શંકર પણ વૈષ્ણવ બની અને વિષ્ણુની પૂજા કરવા માટે, આન દેવી પુરાણને લઈને ચાલો તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય હાથ જોડીને ઊભા હોય દેવીની સામે। જી હા મિત્રો, આ બધા જ પુરાણોના લેખક મહર્ષિ વેદવ્યાસજી દરેક દેવો અવતારોનો મહિમા સમજતા જ હતા। એક જ પરબ્રહ્મના અનુપ્રવેશથી સર્વ દેવો અવતારો થાય છે। તેથી જે શાસ્ત્ર જે દેવનું હોય તે દેવના ભક્તોને વધુ મહિમા સમજાય તે રીતે જ ભગવાનના ચરિત્રો લખાયા હોય। જેમ કે શ્રીમદ ભાગવત કહે છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ પધાર્યા ત્યારે ઇન્દ્ર, બ્રહ્મા, શિવજી વગેરે બધાએ ઊભા થઈને તેઓને પ્રણામ કર્યા, હાથ જોડી સૌ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા। જ્યારે શિવ પુરાણ કહે છે કે જ્યારે બ્રહ્માજી અને વિષ્ણુજીને પરસ્પર યુદ્ધ થયું ત્યારે બંનેનું અભિમાન દૂર કરવા માટે મહાદેવજી સ્તંભ સ્વરૂપે થઈ ગયા। અને મિત્રો, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ત્રિદેવોની આ અદ્ભુત લીલાનું વર્ણન માત્ર શાસ્ત્રોમાં જ નથી પરંતુ આજના જમાનામાં ટીવી સિરિયલ્સમાં પણ ભજવાય છે। इस स्तंभ का सिरा तो समझ ही नहीं आ रहा, किंतु यदि मैं हार गया मेरा तो वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी जिससे ये प्रमाणित हो सके कि मैंने स्तंभ का सिरा ढूंढ लिया। केतकी, मैं तुम्हें अपना साक्षी बना रहा, मेरे साथ चलो। यदि स्तंभ कुछ पूछे तो तुम असत्य कहना, इसके बदले में जो तुम चाहोगी वो सब कुछ मैं दूंगा। ये कैसे संभव है? नारायण ने सत्य कहा, इसलिए ये सर्वत्र पूजे जाएंगे। हर काल में हर स्थान पर विष्णु की पूजा की जाएगी और मेरे आराध्य भी होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान होकर भी इन्होंने अपना अहंकार त्याग कर अपनी हार स्वीकार की। पर ब्रह्मदेव ने अपना अहंकार नहीं त्यागा। सर्वश्रेष्ठ तथा पूजनीय बनने के लालच में इन्होंने आज सत्य भाषण किया, इसलिए आज से इनकी पूजा वर्जित होगी। प्रभु, आप कौन है? मैं हूँ महाशिव। तुमने मेरी पूजा वर्जित की, मुझे दंड दिया। ये अधिकार तुमको किसने दिया? स्तंभ, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ सबसे बड़ा, पर ब्रह्म हूँ मैं। एक क्षण के लिए अपना अपमान सह सकता हूँ मैं, परंतु तुम्हारा अभिमान भंग करना भी आवश्यक है ब्रह्मदेव। इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा और मेरा रुद्र अवतार ही तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा। मैं हूँ काल भैरव, अहंकार का भक्षण करता हूँ मैं। वही अहंकार तुम्हारे भीतर प्रचुर मात्रा में भरा है। પ્રસિદ્ધ સિરિયલોમાં દર્શાવેલી ત્રિદેવોની આવી લીલાઓ એ આપણી પ્રેરણા માટે હોય છે। કોનું અપમાન થયું અને કોનું નહીં એવી દ્રષ્ટિથી જોવા માટે નથી હોતી। માટે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આવા પ્રસંગોને પણ એવી દ્રષ્ટિએ ન જોવા જોઈએ। હવે મિત્રો, રામાયણ સિરિયલ તો કોણે નહીં જોઈ હોય? આ જોઈ લો તેનો એક અંશ। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। आपके अनंत नाम अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहाँ लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे।
ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। આખા વિશ્વના હિન્દુ સમાજમાંથી કોઈ રામ ભક્તને એવું નથી લાગતું કે રામજી શિવજીના સેવક કઈ રીતે હોઈ શકે, કારણ કે ભક્તો આવા પ્રસંગોને ભક્તિની દ્રષ્ટિએ જુએ છે, વિવાદની દ્રષ્ટિએ નહીં. માટે જે સાચા ભક્તો હોય તેમાં આ ભગવાન મોટા કે આ ભગવાન નાના એવા વિવાદને સ્થાન જ નથી રહેતું. भावुक जन है कि वो कहते हैं कि आप भगवान शंकर को छोटा कहते हैं, वो हमारे आराध्य देव, हमको चुभता है. देखो, जब तत्व की चर्चा होगी तो एक है, और जब लीला की चर्चा होगी तो वही एक विविध लीलाएं करता है. रास में भगवान शंकर आए, अगर थोड़ा भी शास्त्र को पढ़े हो तो पढ़ के देख लेना. गोपी रूप धारण किया, रास में प्रवेश पाया, श्री कृष्ण चरण वंदना, किशोरी जी की चरण वंदना, और फिर गोपी रूप धारण करके रास में प्रवेश. लीला को समझते नहीं है और तत्व को समझते नहीं, तो ये झगड़ा करने लगते हैं कि शिव को छोटा कैसे कह दिया. पूछो शिव जी से जाके. देखो भाई, तत्व एक है, पर लीला में जब प्रारंभ होगा तो लीला में छुटाई बड़ाई हंसी मजाक, वो उनकी आराधना, उनकी आराधना. તેથી જ એક સનાતની તરીકે આપણે દરેક ભગવાનના ચરિત્રોને માણવા જોઈએ. જોઈ લો વધુ એક શાસ્ત્રોક્ત કથા. आप भूल गए देव, हम भी सृष्टि के अंग हैं और इस नाते आज हमें कहीं जाना भी है. भूला नहीं नारायण, बस अपने ही कुछ प्रश्नों में उलझ कर रह गया हूं. हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हम कहां से आए हैं, जाना कहां है, क्या उद्देश्य है हमारे अस्तित्व का. जिस सृष्टि को संभालने का दायित्व हमारा है, उसका प्रारंभ कब हुआ, किसने किया. ये कैसा प्रश्न है देव, हमें कौन अस्तित्व में लाएगा. ये केवल एक भ्रम है नारायण. तो सत्य क्या है देव. एक आभास जो मुझे अत्यंत तीव्रता के साथ होता है कि अवश्य कहीं ना कहीं कोई है जो हमसे परे है. सृजन से, संचालन से, विध्वंस से, कदाचित कोई ऊर्जा. ये कैसा प्रकाश पुंज है, कोई माया है. नहीं नारायण, ये उसी महा ऊर्जा की छाया है, हिरण्यगर्भ, जहां से हम सब जन्मे हैं और बार बार जन्मे जाएंगे, निरंतर जन्मे जाएंगे. ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना किसी प्रेरणा के मेरी ही इच्छा से रचा गया है. सभी शक्तियां मुझ में समाई है, सबका अस्तित्व मुझसे है, मेरी इच्छा से है. श्रेष्ठ या निम्न, महान या तुच्छ, शक्तिशाली या दुर्बल, सब कुछ मुझसे है और अनंत तक मेरे ही कारण रहेगा. मैं सबका प्रारब्ध हूँ और पुरुषार्थ भी. मैं सबका दैव हूँ. ભગવાન શ્રી શંકરના મુખેથી નીકળેલા આવા શબ્દોથી ક્યાંય પણ વિવાદ નથી થયો, કારણ કે સૌ કોઈ જાણે છે કે જ્યારે જગજનની માં જગદંબાનો મહિમા ગવાતો હોય ત્યારે બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી અને મહાદેવજી ત્રણેય તેઓ સમક્ષ હાથ જોડીને ઊભા હોય. ये जो आजकल के नए बच्चे ना, ये तर्क वितर्क शुरू कर देते हैं. लीला में तर्क वितर्क नहीं होता है. ये तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते. जब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, पवित्र आहार नहीं करोगे, लाखों नाम जप नहीं करोगे, तब तक ऐसे समझ जाओगे ये कोई बातों का विषय है. भजन नहीं करोगे, परमात्मा तत्व तुम्हारे तर्क वितर्क से समझ में आएगा. इसलिए समझा देते कि समझ लो, तुम्हारा मंगल हो जाए. और अगर ऐसे पक्ष विपक्ष की भावनाएं रखोगे तो तुम्हें संतों में दोष दर्शन हो जाएगा. पक्की बात समझ लो. इसलिए बहुत सावधान, इसलिए बहुत આ તમામ દેવો અવતારોના લીલા ચરિત્રો જોતા તો માનવું જ પડે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના ગ્રંથો ક્યાંય ખોટા ચિતરાયા નથી, સનાતની શાસ્ત્ર પદ્ધતિ પ્રમાણે જ લખાયા છે. તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રત્યેની અનન્ય નિષ્ઠાવાળા કોઈ ભક્તે તે પ્રસંગો કહ્યા હોય, તેમ છતાં પણ જો કદાચ કોઈની લાગણી દુભાય તો તે વ્યક્તિ સાથે વ્યક્તિગત ચર્ચા કરવી જોઈએ. પરંતુ આખો સંપ્રદાય ખોટો, સંપ્રદાયના શાસ્ત્રો ખોટા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન ખોટા, એવા આક્ષેપો કરવા એ તો સાવ અજ્ઞાનભરી અને વજૂદ વગરની વાત છે. આટલું જ નહીં, જે વ્યક્તિને જે ભગવત સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા હોય તે તેને જ સર્વોપરી માને, એ તેની પતિવ્રતાની ભક્તિ છે. આ જુઓ, देवों के देव महादेव शिव है और शिव जी ने कौन से डिपार्टमेंट पकड़ के रखे हैं. मैं बड़े विनम्रता पूर्वक वैष्णवों से भी कहता हूँ, मरोगे तो आओगे तो शमशान में, तो उसका राजा तो हमारा शिव ही है. मेरा प्रश्न है कि मैं शिव जी और श्री कृष्ण जी दोनों जी की आराधना करता हूँ और दोनों को अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी भक्ति विकसित नहीं हो रही है और मैं असमंजस में हूँ कि गुरुदेव मुझको किसको अपना इष्ट मानना चाहिए. गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन.
किसी एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, वो पहुंचा देंगे श्री कृष्ण प्रेम में। श्री कृष्ण तक पहुंचाने की सामर्थ्य भगवान शिव की ही है। मेलडी माने पूछतो होय ने मेलडी ने ई दुनिया में ब्रह्मा ने नो माने, विष्णु तो एने काई नहीं, शंकर तो एना माटे हाव रूखड़, मारी मेलडी मां एटले बस पहुंचेली। महादेव के भक्तों में पहला कोई महादेव का भक्त है तो भगवान विष्णु जी हैं। विष्णु जैसी कोई शिव भक्ति भूत और भविष्य कोई नहीं कर सकता। कोई भी क्षेत्र में शिव जी को जरा देखे तो शिव सभी क्षेत्र में शिखर पर है, उनकी ऊंचाई कोई नहीं पकड़ सकता, वो शिव है। अरे बराबरी नहीं कर सकता, उसके तो ऊपर जाने की बात तो छोड़ो, शिव की बराबरी उसके समानता भी नहीं कोई कर सकते, वो शिव है, वो महादेव। मगर ये हमारी आत्मा के जननी नहीं हो सकते, मगर सृष्टि के रचयिता नहीं है। उस माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा के चरणों में हजारों लाखों राम और कृष्ण उनके नख में समा जाएंगे। वह है माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। राधा और सीता करोड़ों करोड़ों उनके नख में समा जाएंगे। મિત્રો, આ બધા ભારતભરના પ્રસિદ્ધ પૂજ્ય સંતો અને કથાકારો છે. કોઈકને શિવજીમાં આસ્થા છે, કોઈકને વિષ્ણુ નારાયણની ઉપાસના છે, તો કોઈને મા મેલડીમાં, તો કોઈને મા જગદંબામાં પતિવ્રતાની ભક્તિ છે, વળી કોઈકને શ્રી કૃષ્ણનો આશરો છે. એવી જ રીતે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયવાળાને ભગવાન સ્વામિનારાયણની અનન્ય ઉપાસના છે. તેથી તેઓ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સર્વોપરી પરબ્રહ્મ માને છે. આમાં કાંઈ ખોટું નથી ને કોઈ નાનું મોટું પણ નથી. છતાં હજી પણ કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આ જુઓ. तो गुरुजी पहला प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी को श्री हरि ने बनाया, श्री हरि को शिव जी ने बनाया, तो शिव जी को किसने बनाया? और जिसने शिव जी को रचा है तो उसको किसने रचा? और इन तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ा कौन है? फिर वही बात जहां से पहला उत्तर शुरू किया था, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अलग अलग शास्त्र में अपने अपने इष्ट को सर्वसमर्थवान और उच्च बताया है। इसके पीछे कारण यह है कि जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। તો પછી શા માટે કોઈએ સંકુચિત વિચાર રાખીને વ્યર્થ વિવાદોમાં પડવું જોઈએ? સનાતન ધર્મની સેવામાં પોતાનું આખું જીવન સમર્પિત કરી દેનારા આવા પૂજ્ય સંતો અને કથાકારોને જ્યારે પ્રશ્ન નથી તો પ્રશ્ન છે કોને? એ જરૂર વિચારવું રહ્યું. देवी उपासक के लिए सर्वोपरि देवी, सब उनके नीचे। शंकर उपासक के लिए शंकर जी सबसे, उनके सामने। कृष्ण उपासक के लिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वही तत्व बैठा हुआ है। कहीं हम इधर उधर दोष दर्शन करके अपने परमार्थ से भ्रष्ट ना हो जाएं, इसे ध्यान से सुन लो। जो जिनकी उपासना कर रहा है उसके लिए वो सर्वोपरि है। सर्वोपरि इसलिए कि वही सर्वोपरि तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। पर जो जहां उपासना कर रहा है उसके लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे उपास्य देव सर्वोपरि हैं। तर्क की जरूरत नहीं, मान्यता की जरूरत है। आप सर्वोपरि मानेंगे तभी तो आपका मन आराध्य देव में पूर्ण समर्पित होगा। और जब हम भाव से देखते हैं तब हमको दिखाई देता है कि हमारी श्री जी के समान केवल श्री जी है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये हमको देखना, मीरा जी से लड़ना छोड़िए, नहीं करो पूजा भाई, हम परेशान कब कर रहे हैं? हम तो कह रहे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी नंद कह रही थी ये हमारी कुल देवी पूजा को, बोले करो ना, बोले नहीं तुमको करना पड़ेगा, बोले हम तो नहीं करेंगे, हमारे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। उनका नहीं करना चाहिए, बोले क्यों करना चाहिए? बोले सुहागवती होती, वो विधवा थी, बोले तुमने कुल पूजन नहीं किया क्या, तुम क्यों वैधव्य को प्राप्त हो? बस यही जगह से शुरू हो गया था उसका द्वेष भाव, बहुत प्रचंड द्वेष। तो सच्ची मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, झगड़ा झंझट की भावनाओं का त्याग करके एक ही परम तत्व है। पर हम अपने सत्संगी जनों से कहते हैं अपनी उपासना में अपने आराध्य देव के समान कोई नहीं है, ये सबको मानना चाहिए। जब ऐसा मानोगे तभी आप प्रेम रस को प्राप्त होगे। આમ શાસ્ત્રો લખવાની રીતે જોઈએ કે ઉપાસના ભક્તિ કરવાની રીતે જોઈએ? ગર્વથી કહેવાનું મન થાય છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય
એ સનાતન ધર્મનું અવિભાજ્ય અંગ છે. તો મિત્રો, આ વિડિયો સિરીઝ દ્વારા ભવિષ્યમાં હજી ઘણી સ્પષ્ટતાઓ થવાની છે, પરંતુ આટલી સ્પષ્ટતાઓ પછી પણ જો આપણે આ સાચી વાત આપણા પરિવાર, મિત્રો કે સગા સંબંધીઓ સુધી નહીં પહોંચાડીએ તો આપણે ટાણાની સેવા ચૂકી જઈશું. તો મિત્રો, ટૂંક સમયમાં જ ફરી મળીશું ત્રીજા એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી સૌને જય સ્વામિનારાયણ, જય સનાતન ધર્મ.